پی آئی اے کے ذریعے لاہور سے مانچسٹر جانے والے ایک پاکستانی خاندان نے جہاز کے اندر ہنگامہ آرائی کی۔ ان میں سے ایک نے جہاز کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی اور پورے برطانیہ میں تہلکہ مچ گیا۔ خیبر پختونخوا میں نئی حکومت کی آمد ہے۔ تحریک انصاف حکومت بنائے گی اور آج وہاں پہ پہلا بم دھماکہ ہوا ہے۔ پشاور میں حالیہ دنوں کا پہلا بڑا بم دھماکہ۔ چند دن باقی ہیں، مشکل تمام ایک ہفتہ اور پھر نئی حکومت کا ہنی مون ختم ہوگا اور کڑا امتحان شروع ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اوپر کی تبدیلیاں روکی مگر نگراں حکومت والے اب نیچے کی سطح پر دھڑا دھڑ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ کراچی کے لیاری میں چند روز سے جنگ جاری ہے۔ درجنوں لوگ الزامات کے مطابق قتل کر دیے گئے ہیں مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ برطانیہ میں پہلے ہی سراسیمگی کا عالم ہے۔ 2 روز قبل برطانیہ کے شہر لندن کی ایک مصروف شاہراہ وولچ پہ 2 شخص نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دونوں کے نام مائیکل تھے، انہوں نے بغدے سے ایک برطانوی فوجی پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے باقاعدہ لوگوں سے کہا، چلنے پھرنے والوں سے کہا کہ اس کی مووی بنائیں اور جس میں اس نے اپنے قتل کا باقاعدہ نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اس حوالے سے مختلف گفتگو بھی کی۔ پورے برطانیہ میں اس سلسلے میں سراسیمگی کا عالم تھا۔ برطانوی وزیر اعظم جو فرانس کے دورے پہ تھے، دورہ مختصر کر کے لندن واپس آئے تھے۔ اسی ماحول کے اندر آج ایک تہلکہ سمجھ گیا دوپہر کو جب خبر یہ آئی کہ لاہور سے مانچسٹر آنے والے پی آئی اے کے طیارے کو جو کہ اس وقت لندن کے اوپر سے گزر رہا تھا، اسے برطانوی ایئر فورس کے طیاروں نے گھیر لیا اور اسے مجبور کیا گیا کہ وہ سٹینسٹڈ ایئرپورٹ پہ اتر جائے جو لندن کا ایک اور ایئرپورٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس خبر کو برطانیہ کے نشریاتی اداروں نے جیسے ہی نشر کیا، پورے ملک میں ایک بار پھر جو سراسیمگی جاری تھی اس میں اضافہ ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ لاہور سے چلنے والے اس جہاز میں پاکستانی ایک خاندان جو کہ دراصل برطانوی نژاد پاکستانی خاندان ہے، اس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس دوران جو خواتین تھیں وہ مردوں سے الجھ پڑیں اور مردوں اور خواتین کے جھگڑے میں جب کرو نے آ کے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر کرو پیچھے نہیں ہٹا تو وہ جہاز کو دھماکے سے اڑا دے گی۔ اس کے فوراً بعد کرو نے پائلٹ کو اس بات کا مطلع کیا۔ پائلٹ ندیم صوفی نے اس کی اطلاع فوری طور پہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو دی اور جیسا کہ برطانیہ میں ایسی اطلاع کے فوراً بعد ہوتا ہے، برطانوی ایئر فورس کے ٹائفون طیارے فضا میں بلند ہوئے اور تیزی سے اس نے پی آئی اے کو گھیرا۔ پی آئی اے کے اس طیارے کو کہا گیا کہ وہ فوری طور پہ قریبی سٹینسٹڈ ایئرپورٹ پر اتر جائے، جس کے بعد برطانوی حکام، پولیس، انٹیلیجنس کے لوگ فوری طور پہ طیارے میں سوار ہوئے اور ان 7 افراد کو حراست میں لیا گیا، جہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ 7 کے ساتھ دراصل مانچسٹر کے رہنے والے برطانوی نژاد پاکستانی ہیں جن کا تعلق کھاریاں سے ہے اور وہ لاہور کے راستے مانچسٹر واپس جا رہے تھے۔ اس دوران عمارہ اشرف جنہوں نے مبینہ طور پہ جہاز کو اڑانے کی دھمکی دی تھی اور ان کے ساتھ محمد شفقت کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے ساتھ 7 دوسرے لوگ بھی تھے جس کے بعد ان میں سے موجود عمارہ اشرف اور شفقت کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن 2 اور اشخاص جو کہ اس طیارے میں موجود تھے دونوں برطانوی ہیں، ان دونوں بارش ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اطلاعات کے مطابق اس وقت وہ اسیکس پولیس کی تحویل میں ہیں جہاں پر ان سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اسیکس پولیس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو فی الحال رہا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی۔ صرف یہ کہ برطانیہ کے میڈیا نے بلکہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اس وقت نشر کرنا شروع کی جب پی آئی اے کے طیارے کو برطانوی ایئر فورس کے طیاروں نے گھیرا اور اسے سٹینسٹڈ ایئرپورٹ پہ اتار دیا۔ اس وقت بھی برطانیہ میں اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے اور چیب گویا اس کا احوال لیتے ہیں۔ لندن سے ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندہ خصوصی مرتضی علی شاہ۔ مرتضی، اس واقعے کے حوالے سے کچھ مزید معلومات ہمیں ملی ہے، کس پس منظر میں یہ واقعہ ہوا ہے؟ جی کامران صاحب، اس وقت تک جو اطلاعات سامنے آئی ان کے مطابق یہ جو 2 مسافر ہیں جو اس وقت ایسیکس پولیس کی حراست میں ہیں، انہوں نے جو ایئرپورٹ جو پی آئی اے کا جو سٹاف تھا، کرو ممبرز تھے، ان کے ساتھ فائٹ شروع کی، بدتمیزی کی، ایک
पैसेंजर से, और उसके बाद उन्होंने जो पायलट का कॉकपिट है वहां दाखिल होने की कोशिश की। यहाँ पर एक पैसेंजर से जिन्होंने जियो न्यूज से बात की, उनका ये कहना है कि वो उन दोनों पैसेंजर की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और उनमें से एक पैसेंजर ने कहा कि वो त्यारे को उड़ा देगा, और इसने इस तरह की एक खातून के साथ वहाँ गलीज जबान भी इस्तेमाल की, जिसके बाद वो हुल्लड़बाजी कर रहे थे। जिसके बाद जो PIA का अमला था उन्होंने देखा कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और फिर वो पायलट को जो रॉयल एयरफोर्स से मदद मांगना पड़ी। ये खबर जब यहाँ फैली तो बिल्कुल पूरे बरतानिया में एक, आज सुबह भी चूंकि ब्रिटिश एयरवेज के एक त्यारे पे एक सनसनीखेज खबर आई थी कि हंगामी हालात में लैंड करना पड़ा था, तो बहुत पूरे मुल्क में सनसनी फैल गई। इस वक्त दोनों जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो एसेक्स पुलिस की हिरासत में उनसे। अच्छा मुर्तजा, ये बताइएगा कि बाकी पैसेंजर्स, क्योंकि जहाज स्टेंस्टेड उतर गया मैनचेस्टर, क्या जहाज को जाने की इजाजत मिल गई है या किसी और तरीके से मुसाफिर अब मैनचेस्टर जाएंगे? क्या हो रहा है इस वक्त स्टेंस्टेड में? जी, इस वक्त ये अभी तक तय नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त जितने भी 297 पैसेंजर हैं उन सब से पुलिस पूछगिछ कर रही है कि उनका आई विटनेस अकाउंट क्या है। उसके बाद जो स्टेंस्टेड एयरपोर्ट की अथॉरिटीज है उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो फैसला करेंगी क्या उन्हें कोचेस के थ्रू मैनचेस्टर भेजा जाएगा या उनके लिए कोई स्पेशल फ्लाइट अरेंज की जाएगी, लेकिन इस वक्त तक कोई फैसला नहीं हो सका है। जितने भी पैसेंजर्स और क्रू हैं वो इस वक्त जो स्टेंस्टेड एयरपोर्ट है उसके रिसेप्शन एरिया में मौजूद है, जहां पुलिस उनसे तहकीकात कर रही है। एक तहकीकात कर रही है। और ये जो 7 अफराद जो कि इस वाक़े में बराह रास्त मुलव्विस हैं, ये हैं बरतानवी शहरी लेकिन पाकिस्तानी नजात? जी, ये पाकिस्तानी नजात हैं, और उनमें से 2 का ताल्लुक मैनचेस्टर से बताया जाता है। ये कहा जा रहा है कि जिस लड़की ने इनिशियली कंप्लेंट की, जिसको हरास किया जा रहा था, वो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी ओरिजिन की है। बाद लोग कह रहे हैं कि वो एक टीनेजर है जो मैनचेस्टर सिटी से की रहायशी है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी जो बाद सियासी जमातों के लोग भी इस फ्लाइट में मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर पहुंच जो ही ये हालात पैदा हुए तो उन्होंने सबसे पहले जियो न्यूज से कांटेक्ट किया, और उन्होंने अपना आई विटनेस अकाउंट भी दिया कि उन्होंने क्या देखा और किस तरह से पूरे जहाज में एक स्केयर पैदा हुआ। और मतलब एक वक्त ये भी था कि वहाँ पे लोग बहुत चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उनको यूं लग रहा था कि शायद कोई बड़ा हादसा न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, हमें इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात बता रहे थे। तहलका सा बच गया बरतानिया में, और उस जहाज़ में जिसको के घेर लिया था बरतानवी एयरफोर्स के जेट तैयारों ने, वहाँ का हाल तो आप जान ही सकते हैं, मगर जिम्मेदारी उन पैसेंजर्स की थी, उनमें से एक ग्रोह की थी जो कि इस जहाज़ पर सवार थे तो ये बरतानवी शहरी, लेकिन पाकिस्तानी नजात लाहौर से मैनचेस्टर जा रहे थे, आपस में बुरी तरह से लड़ गए और एक दूसरे को धमकियां भी दी, फिर कॉकपिट में भी घुसने की कोशिश की, और फिर जैसा कि वहाँ का प्रोसीजर है, जैसे ही पायलट ने पैनिक कॉल दी, बरतानवी एयरफोर्स के तैयारे आए और जहाज़ को नीचे उतारा गया। अब हर 295 मुसाफिर में से एक से लंदन की पुलिस सवालात पूछ रही है और तहकीकात कर रही है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे तवील अरसे के बाद, तवील खामोशी के बाद आज पेशावर में बम धमाका हुआ है। ये बड़ा बम धमाका है। नई हुकूमत की वहाँ पर आमद है और हुकूमत होगी तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की। क्या इससे ये वाक़या मुंसलिक है और आगे चल के पेशावर में हालात क्या हो सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तवील खामोशी के बाद पेशावर में आज दहशतगर्द हमला हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता हमलों से ये हमला ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका निशाना पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी या सरकारी काम नहीं बने, बल्कि इसका निशाना अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजहबी रहनुमा बने। और आज जहाँ ये धमाका किया गया वो तबलीगी मरकज़ समझा जाता है। जुमे की नमाज के बाद ये खुदकुश धमाका हुआ है और इसका निशाना बज़ाहिर अफगान मजहबी रहनुमा हयातुल्लाह थे, जो कि इस वाक़े में बच गए क्योंकि वो नमाज जुमा अदा कर रहे थे बाहर। उनका गार्ड, उनका ड्राइवर और एक और शख्स इस वाक़े में जाबहक हो गया। 3 लोग जाबहक हुए हैं। पेशावर का ये बहुत तवील अरसे के बाद धमाका है, लेकिन ये उस नौइयत का हमला नज़र नहीं आता जैसा कि आम तौर पे खैबर पख्तूनख्वा या दूसरे इलाकों में होते हैं, क्योंकि इसका निशाना सरकारी ऑफिशियल्स नहीं बल्कि एक मजहबी रहनुमा थे। इसी किस्म का एक हमला गुज़िश्ता जुमे को भी हुआ था मालाकंड में, जब नमाज जुमा के बाद 2 बड़े धमाके हुए थे मालाकंड की मसाजिद के बाहर, जिसमें 12 अफराद जाबाक हो गए थे। और आज भी जुमा था और जुमे के वक्त ही ये हमला किया गया। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। इसकी अहमियत भी ये भी है कि अब हुकूमत तब्दील आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में
तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं और ख्याल ये किया जा रहा है कि मजमूई तौर पर इस दौर में सिक्योरिटी सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा की बहुत हद तक बेहतर होगी। मगर आज के वाक़े की अहमियत, इसका जायज़ा लेंगे पेशावर में। हमारे साथ मौजूद होंगे अखबार दी न्यूज़ के पेशावर में एडिटर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। आज के इस धमाके की अहमियत क्या है? ये आम नौइयत का धमाका नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसका निशाना मजहबी रहनुमा को बनाया गया है। देखें, आज जो पेशावर में पजग्गी रोड में ये मदरसे के करीब धमाका हुआ है, ये इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। ये जिनके ऊपर हमला हुआ हयातुल्ला, ये अफ़गानिस्तान के एक मुजाहिदीन रहनुमा थे और इनके जो चचा थे मौलाना जमीलुर रहमान, वो सल्फियों के तंजीम के सरबराह थे, उनको भी मारा गया था और काफ़ी इनकी दुश्मनियाँ हैं। इनकी हिज़्ब इस्लामी हिकमतियार से भी दुश्मनी रही, तालिबान से भी इख्तलाफात रहे, अफ़गान हुकूमत से भी इनके मसले रहे। तो ये सारा जो सिलसिला है ये अफ़गानिस्तान का है। चूँकि पाकिस्तान में कोई 30 लाख अफ़गान महाजर हैं, तो ये अपने झगड़े और दुश्मनियाँ भी पाकिस्तान ले आए हैं। हमारी मुश्किल एक ये है कि ये जो अफ़गान हैं, चूँकि वहाँ पे अफ़गान जिहाद हुआ, आपस में लड़ते रहे, तंजीमी झगड़े थे, दुश्मनियाँ, तो वो सारी जो उनकी दुश्मनियाँ हैं वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गई हैं। यहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमले करते हैं। तो ये हमला उस सिलसिले की एक कड़ी है। इसका ताल्लुक जो है वो उस दहशतगर्दी की जंग से नहीं है, या वो जो पाकिस्तान में बम हमले होते हैं या फ़ौजी कार्रवाइयाँ होती हैं, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और एक चीज़ और भी नोट की जा रही है कि तवील अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले के मुकाबले में बेहतर है और ये तवक्की की जा रही है कि अब नई हुकूमत बनने वाली है तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की, इससे मज़ीद बेहतरी आएगी। क्या ये तासुर सही है? देखिए, पेशावर में तो वाकई कुछ अरसे के बाद इस तरह का हमला हुआ है और वो भी आप समझें कि पाकिस्तान की किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, बल्कि ये अफ़गानों का आपस में झगड़ा है। लेकिन देखें, खैबर पख्तूनख्वा में और हमले हो चुके हैं। इससे पहले इंतखाबात के बाद ही ये पेशावर के करीब जो मतनी का इलाका है, वहाँ फ़ौजी काफ़िले के ऊपर एक हमला हुआ था और उसके बाद फिर मलकंड एजेंसी में बाज़दरा में जुम्मे की नमाज के दौरान 2 मसाजिद में हमले हुए और वहाँ पे 21 लोग जाँ बाग हुए, 45 ज़ख्मी हुए। इसके अलावा भी कुछ और इक्का दुक्का वाक़यात सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए और कबायली इलाकों में भी कुछ हमले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुकम्मल हमले रुक गए थे, लेकिन यह था कि उसमें कमी आ गई थी। अब देखें, फ़िलहाल तो हुकूमत नहीं बनी। हुकूमत जब बनेगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि उनकी क्या पॉलिसी बनती है। एक तो मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत और फिर सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी की एक मखलूत हुकूमत। तो जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि वो इनके इरादे और इनकी पॉलिसियों को देखेंगे। अगर इन्होंने संजीदगी दिखाई मुज़ाकरात करने में, तो वो कह रहे हैं कि वो भी मस्बत जवाब देंगे। तो मेरे ख़्याल में अब जब हुकूमत बन जाएगी और फिर ये आपस में मशवरा करेंगे, फ़ौज से भी राय लेंगे और अगर कोई पॉलिसी बनाएंगे बातचीत करने के लिए, तो फिर शायद हम देखेंगे कि हमले रुकते हैं, उनमें इजाफा होता है। लेकिन फ़िलहाल कोई जंग बंदी नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इसलिए इस तरह के मज़ीद हमले भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई। हमारे साथ एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा, नई हुकूमत आएगी, मसनद इख्तिदार संभालेगी और फिर सख्त और कड़ा इम्तहान शुरू होगा। जिस पाकिस्तान का इख्तिदार जनाब नवाज शरीफ संभाल रहे हैं, वहाँ पे हिमालयाई मसाइल हैं। वो मसाइल क्या हैं और हल कैसे होंगे, इसका जिक्र करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।